الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ لوگ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، حق کو اپنانے کے بجائے وہ باطل پر اڑے رہتے ہیں، حق بتلایا بھی جائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ، چونکہ بہت موٹی موٹی پگڑی والے جو لوگ بیان کرنے والے ہوتے ہیں، جو علماء اور خطبہ ہیں ان کے، یہ من گھڑت روایات بیان کر کے عوام کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ سن کر کے کلپ وغیرہ سن کر کے کہ دیکھو فلاں چیز ایسی ہے، ویسی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں لوگ طرح طرح سے غلو کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی تھے، اور اس وقت نبی بنائے گئے، اس وقت آپ نبی تھے کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ میں اس وقت نبی بنایا گیا جب نہ تو پانی تھا اور نہ مٹی تھی، یعنی یہاں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے پہلے آپ تھے، سب سے پہلے آپ کا وجود سب سے پہلے آیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے تبھی آپ نبی بنا دیے گئے۔ یعنی یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر کے پیدا ہوئے، پیدائشی نبی تھے، یہ کہنے کا مطلب اور مقصد ہے ان کا۔ اسی لیے وہ اعتراض کرتے ہیں جب کہیں کوئی بات بتلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عمر میں جا کر کے 40 سال کی عمر میں جا کر کے آپ نبی بنائے گئے، تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں، نبی ہو کر کے پیدا ہوئے۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت اس وقت واجب ہوئی جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ موضوع ہے، یہ گڑھی گئی، یہ صوفیوں نے گڑھا ہے۔ اور یہ جو قبر پرست لوگ ہیں، طرح طرح سے کہیں سے بھی کچھ مل جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہی چیز ہے، یعنی حق کو دیکھنے کے بجائے صرف باطل کو اپنانے میں، اور ہر ملاوٹی والی بات اس کو پسند ہے۔ جو صحیح ہے ہر کچھ میں یہ ملاوٹی کو پسند کرتے ہیں، بالکل جو سیدھا سادھا بالکل واضح ہے، جہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ اس میں اختلاف کیا جائے، وہ اپنانے کے بجائے صرف ملاوٹی کو، جس میں غلو والی بات ہو، جس میں حد سے تجاوز والی بات ہو، اسی کو یہ اپنانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اپنا کر کے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ حق بتلائے بھی نہ تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، جا کر کے کہیں گے کہ نہیں، نبی تو پیدا ہوئے تھے، نبی ہو کر کے نبی بن کر کے ہی پیدا ہوئے۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت اس وقت واجب ہوئی جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ گڑھی گئی بات ہے۔ اور نہ پانی تھا اور نہ مٹی تھی، یہ ثابت کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت سب سے پہلے، تو بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو سب سے بعد میں کیوں آئے؟ سب سے بعد میں کیوں آئے؟ یعنی آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام لے لیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور وہ بھی آنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو نعوذ باللہ، کیا بچپن سے آپ چھپاتے رہے 40 سال تک کہ آپ نبی ہیں؟ نبی ہونے کے باوجود بھی آپ چھپاتے رہے، ظاہر نہیں کر رہے تھے آپ؟ تو یہ بات گڑھی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، کیونکہ قرآن سے یہ بات ٹکرا رہی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ ایک صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان، ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے، میں انسان بنانے والا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اللہ رب العالمین نے انسان کی شروعات کیسے کیا؟
मिट्टी से किया ना, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ। अब मिट्टी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को पैदा किया, तो ये पानी अलग मिट्टी अलग कहाँ है, ये मरहला कब आया, कहाँ जिक्र है? हाँ, मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में पानी जो भी है इख्तिलात वो अलग बात है, लेकिन मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, तो ये सूफियों ने गढ़ रखा है, ये बनावटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुलू करने के लिए, कि मेरे लिए उस वक्त यानी कायनात में सबसे पहले आप पैदा हुए, आपके लिए नबूवत साबित हुई। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप के ज़रिए से दुनिया में आए हैं, जिस तरह के दूसरे लोग आए हैं, इसी हिसाब से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। अलबत्ता सही हदीस से जो पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, जैसा कि तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, और ये हदीस सही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि क़ालू या रसूल अल्लाह मता वजबत लक नबुव्वह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए नबूवत कब वाजिब हुई, यानी आप नबी कब लिखे गए, नबी बनना कब लिखे गए, इस हिसाब से कि आप नबी बनेंगे, आपके लिए नबूवत कब वाजिब हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व आदम बैन रूह व तीन, ये बैन रूह वल जसद, कि आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, रूह और जिस्म के दरमियान थे, तब मेरे लिए नबूवत लिखी गई। इसी तरह से मुसनद अहमद के अंदर मैसरा फज्र से कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता कुतिबता नबिया, कि आप नबी कब लिखे गए, यानी नबी बनना कब लिखे गए आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व आदम बैन रूह वल जसद, कि आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान थे। और ये जो मामला है ये तकदीर का मामला है, तकदीर का मामला है, यानी जैसा कि सही बुखारी मुस्लिम के अंदर अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अहदकुम युजमउ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफा सुम्मा यकूनु अलक़ा सुम्मा मुज़ग़ा, जो भी मराहिल है इधर कि हर आदमी, तुम में से हर आदमी अपनी माँ के पेट के अंदर 40 दिनों तक नुतफ़ा की शक्ल में होता है, फिर उसके बाद अलक़ा और फिर मुज़ग़ा की शक्ल में होता है, फिर वहाँ एक फरिश्ता भेजा जाता है और 4 चीज़ें लिखी जाती, 4 बातें, अमल लिखा जाता है और उम्र भी लिखा जाता है, इसी तरह से रिज़्क लिखा जाता है, और नेक बनेगा बुरा बनेगा, ये सब कुछ लिखा जाता है वहाँ 4 चीज़ें। फिर रूह डाली जाती है, रूह उसमें डाली जाती है। अब ये माँ के पेट में कि एक इंसान, मान ले कि आप यहाँ सऊदी में आए हुए हैं, तो सऊदी में आना आपका लिखा हुआ था, आपको पता था? नहीं था ना। कैसे पता चला है? जब आप आ गए हैं तब आपको पता चला है। हर आदमी के बारे में तकदीर में लिखा हुआ है। और जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हदीस है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कतबल्लाहुल खलाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़ ब50 अल्फ़ सना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक़ात की तकदीर कब लिख दी? 50,000 साल पहले। कब? आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिख दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सब कुछ तकदीर में लिख दिया। और ये भी कहा कि अल्लाह का अर्श पहले पानी पर था। तकदीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ लिखा, क्या कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु अल-क़लम क़ाल लहू उक्तुब क़ाल माज़ा अक्तुब क़ाल उक्तुब मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा, कि क़यामत तक जो कुछ भी वाक़े होने वाली है वो सारी चीज़ें लिख डालो। कलम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। अब तकदीर का मामला था, तो तकदीर में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा था, सबका लिखा हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम नबी बनेंगे और फिर दूसरे जो नबी आएंगे वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखे हुए थे, इनका भी लिखा गया था कि आप सबसे आखिरी नबी बन करके जाएंगे, आपकी उम्मत ये आखिरी उम्मत होगी। ये सब यहाँ तकदीर का मामला है। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन करके पैदा हुए, नबी बन के पैदाइशी नबी। तो ये बात फजूल की बात है। जो आदमी ऐसा अकीदा रखता है वो अकीदा फासिद अकीदा है, बातिल अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी नबी थे, आप नबी बन करके ही पैदा हुए। अगर नबी बन करके पैदा हुए तो फिर आप इतने दिनों तक कहाँ थे? फिर 40 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, यहाँ नबी बनाए जा रहे, फिर रसूल बनाए गए,
या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल बना रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया है, मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान, कि आपको न तो किताब के बारे में पता था न तो ईमान के बारे में पता था। ये जो ईमानियात है इसके बारे में कैसे पता था, कब पता चला आपको? आप राह भूले हुए थे। राह दिखाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने राह दिखाया। वो वजदक दाल्लन फहदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल वाज़े कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी बनकर के कैसे पैदा हुए? तो ये जो बात है ये फजूल की बात है। जो लोग इस्तदलाल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो फ़ला आदमी ने देखा कि इस पर नबूवत की निशानी है, मुहर नबूवत है, फ़ला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत बचपन से हो रही थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ेर परवरिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश पा रहे थे और फरिश्ते निगरानी कर रहे थे। इस हिसाब से ये और बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसीलिए तो कई मरतबा सीना चाक हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी नबी थे नहीं, पैदाइशी नबी नहीं थे। तो जो ऐसा अकीदा रखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी नबी थे, ये बातिल है। इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने मजमूल फतवा में जिक्र किया है कि जो आदमी ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आने से पहले भी नबी थे, तो ये मुसलमानों की इजमा के मुताबिक ऐसा शख्स काफिर है। जो आदमी ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आने से पहले भी नबी थे, तो वो काफिर है और इस पर मुसलमानों का इत्तेफाक है, इजमा है। इस हिसाब से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के जब हुए तब नबी बनाए गए हैं। उससे पहले आपको नबी के बारे में पता नहीं था कि आप नबी हैं या क्या है नहीं है, आपको कुछ पता नहीं था। ये जब आपके ऊपर जब मरहला आया, जब ये वक्त आया, तब आपको पता चला कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। लेकिन इससे पहले आपको कहाँ पता था? तो तकदीर में तो बात हर एक की लिखी जाती है, हर एक की लिखी गई है। कौन क्या करेगा नहीं करेगा सब कुछ लिखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब सब कुछ आसमान व ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले सब कुछ लिख दिया, तो उसमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ऐसा था। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से थे, आपके नबूवत के बारे में पता है। अब जैसे कि नबियों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है और ये गवाही ली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि जो कुछ तुम्हें किताब और हिकमत दिया गया है और तुम्हारे दरमियान अगर रसूल आ जाए तो तुम उस पर ईमान लाओगे, उसकी मदद करोगे। तो नबियों ने कहा कि हाँ हम मानेंगे, हम उसकी तस्दीक करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि गवाही तुम लोग गवाह रहो, मैं भी गवाह हूँ। तो अब नबी आए, इतने नबी आए, फिर भी नबी छुपाते रहे, दूसरे नबी भी छुपाते रहे। इतना तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खबर दिया था कि नबी आने वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबानी भी मैं बाद इसमहु अहमद, कि मेरे बाद जो नबी आने वाले उनका नाम अहमद होगा। तो अहमद होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी नबी थे, आप नबी बन करके पैदा हुए। तो नबी बन करके पैदा हुए तो आप इतने सालों तक छुपाते क्यों रहे? आप 40 साल की उम्र में जाकर के ही क्यों आपने जाहिर किया कि मैं नबी अब रसूल हूँ? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा था कि आप 40 साल के बाद नबी बनेंगे। आपको नबूवत का ऐलान करने का कब मिलेगा? जब आप 40 साल के हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख रखा था, तकदीर का मामला था। तो तकदीर में तो हर एक की तकदीर लिखी जा चुकी है और हर एक की तकदीर में ये बात लिखी होती है कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा, कहाँ मरेगा नहीं मरेगा, और ये अल्लाह जानता है, इंसान नहीं जानता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गुलू ये मुनासिब नहीं है, ये सही नहीं है। तो जो लोग ये सूफ़ी और डांस और नाच करने वाले जो नाचते और गाते हैं और ये सब इस तरह से बयान करते हैं, ये सब गुलू करते हैं, ये सब सही नहीं है। ये अकीदा ही सही नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी नबी थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होकर के ही पैदा हुए। बल्कि यहाँ तकदीर का मामला था। तकदीर में लिखा गया था कि आप नबी बनेंगे, आप आखिरी नबी होंगे, आप नबियों का खात्मा आप पर होगा। ये सब कुछ लिखा गया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है।